Good morning, all of you. My dear student, welcome back once more also. One day before, I told you about verb as well as classification of verb. Verb has been classified into two parts, auxiliary verb and main verb. Auxiliary verb also has been classified into two parts, primary auxiliary and modal auxiliary. Primary auxiliary has been already taught by myself one day before, and today I will like to take modal auxiliary. Modal auxiliary भी बिल्कुल प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसी है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है. प्राइमरी ऑक्सिलरी are also the verb that help the main verb in order to form the sentence in each category, present, past and future. While modal auxiliary also are such verb which help the main verb in order to form the sentence in present, past and future in three of the categories. Definition are the verbs that help the main verb in order to form the sentences in each category, present, past and future. Example is also given. On the road, I shall go to school. Related to future, another example also can be given in present. I can also write a letter. In past, I could also sing a song. So in each category, present, past and future, modal auxiliary, modal verb can be explained in present, past and future in three of the categories. Modal also have been divided into two parts. Modal भी दो भागों में बांटे गए हैं. एक तो ये एक नॉर्मल मॉडल और दूसरा है सेमी मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेक मॉडल. माय डियर स्टूडेंट, कम टू पॉइंट नंबर वन. मस्ट इज यूज्ड ऑन प्रियोरिटी बेसिस. ये प्रियोरिटी बेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें वो काम करना ही करना है. अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा और यहां तक कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. उसमें कोई ढीलापन नहीं चलेगा. बाकी में अगर शुड और ओट टू की बात करें, उनका भी मतलब भी चाहिए ही होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है. तीनों वर्ड का मतलब चाहिए होता है. अगर उनका ना भी किया जाए तो चल जाएगा शुड और ओट टू का, मगर मस्ट एक ऐसा मॉडल है जिसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो भी एज अ सेंटेंस के साथ, जिस सेंटेंस में जरूरी काम करना पड़ेगा. उसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकते. ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ये जहां पे किसी काम को करना ही पड़ता है, और वो भी जरूरी हालतों में. एग्जाम्पल आपके सामने पेश है. इज यूज्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस. प्रायोरिटी बेसिस में इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, for example, suppose a person is going one place to another, he is crossing the road. While crossing the road, he also becomes the victim of car accident. He has been injured badly. In that situation, must will be used. The injured must be admitted in the hospital. यहाँ पे मस्ट लगेगा, शुड नहीं लगा सकते, ओट टू नहीं लगा सकते, क्योंकि ओट टू और शुड अनिवार्यता को जाहिर नहीं करते. अनिवार्यता को जाहिर करने के लिए एक ही वर्ड है, वो है मस्ट. द इंजर्ड मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल forthwith without any delay. Now come to point number 2. May. May is used for taking or giving permission. Also used to destroy present. ये परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल होता है. साथ ही
ये वर्तमान को साबित करता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट, इफ ए स्टूडेंट वांट टू गो आउटसाइड फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, then he will say to his teacher, if he has come from outside and he is coming inside the classroom, then he will ask permission, he will ask for permission to his teacher that may I come in sir. तो परमिशन मांगेगा अपनी टीचर से, अगर वो बाहर से आ रहा है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और अगर टीचर ये कहता है यस यू मे कम इन, तो ये परमिशन देने के लिए इस्तेमाल होगा। साथ ही मे हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब प्रेजेंट, ये वर्तमान को साबित करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं आ सकता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, तो ये तीनों वर्ड साबित करते हैं वर्तमान को यानी प्रेजेंट को। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, माइट। Might is a past form of may, also used for taking, giving permission। ये past form तो may की है, और ये परमिशन लेने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल ये भी किया जाता है। Might ही do the work, तो it is also describing to the past tense। ये past tense को की तरफ इशारा करता है कि क्या वो भी काम कर सकता था। Now come to point number 4, can। Can is also used for taking, giving permission, also used to describe present as well as to describe desire and possibility। इच्छा और संभावना को भी जाहिर करता है, और इसके साथ वर्तमान काल को साबित करता है, और परमिशन लेने और देने के लिए तो ये मे और माई की तरह काम करता है। Suppose that if a student has been ordered by the teacher in order to reply the question, but the first student was not asked, पहले स्टूडेंट से पूछा नहीं गया, and another student was asked the reply of the question by the teacher, और दूसरे से पूछ लिया गया। After answering the question, the first student said to his teacher that sir, I can also do this work। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। I can also sing a song। I can also sing a song। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, ये गाना मैं भी गा सकता हूँ। तो यहां पर लगाया गया है I can sing a song। तो can has been used in order to describe present as well as desire, possibility, also has been used for taking and giving permission। परमिशन देने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर कुड की बात करते हैं नंबर 5 पे, तो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, also used to describe desire or possibility along with taking, giving permission। ये भी परमिशन लेने देने के लिए इस्तेमाल होता है। Difference is only one, that can is used in order to describe present while could is used in order to describe past। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल किया गया है कैन को, और कुड को पास्ट में इस्तेमाल किया गया। और सेंटेंस आपके सामने पेश है, कुड आई ऑल्सो राइट ए लेटर। मैं भी एक पत्र लिख सकता था। ये आपके सामने प्रश्नवाचक है। दूसरा सेंटेंस इससे संबंधित और ही बन जाएगा, आई कुड ऑल्सो गो देयर। मैं भी वहां जा सकता था। ये दोनों सेंटेंस इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। सेल इज ऑलवेज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
also used to describe future, and it is also used always with first person pronoun I and we only. Example is also given, I shall go to school. लेकिन कुछ हालतें ऐसी हैं जिन हालतों में सेल आई और बी के साथ नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि विल आई और बी के साथ इस्तेमाल होता है, और ये हालतें हैं कंडीशनल वाक्यों के साथ. बट इन कंडीशनल सेंटेंसेस सेल इज नॉट यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, बट विल इज यूज्ड with first person pronoun I and we in conditional sentences only. But in conditional sentences will be used with I and W, I and we. Should is a past form of shall, also used for taking हमने गिविंग एडवाइस. ये शहर के पास फॉर्म तो जरूर है, लेकिन ये सलाह लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सपोज दैट इफ ए स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 90 प्लस इन ऑल द सब्जेक्ट एंड अनदर स्टूडेंट हैज नॉट बीन एबल टू डू सच, देन द फर्स्ट स्टूडेंट हैज बीन आस्क्ड बाय द अनदर स्टूडेंट व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू गेट वेल जस्ट लाइक यू. क्या किया जाए मैं भी तुम्हारे जैसा नंबर लेकर आऊं. देन फर्स्ट वन सेड टू द अनदर, पहले ने दूसरे से कहा, क्या कहा? यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस. अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए. यानी उसने पूछा है, उसने सलाह दी है और उसने सलाह दी है. तो शुड has been used for taking and giving advice, सलाह लेने और देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वैसे जनरली इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ सेल, वैसे सेल की पास्ट फॉर्म है. Now come to point number 8, will. Will is used with all the noun and pronoun except I and we. Example आपके सामने पेश है. He will play the match. Also will be used with I and we, but in conditional sentences. लेकिन conditional sentences में ये आई और बी के साथ इस्तेमाल होगा विल. एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू इफ यू कम इन टाइम. अगर तुम टाइम पर आते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा. यहां पे कंडीशन दे दी उसने कि अगर तुम टाइम पर आते हो तो मैं मदद करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट हेल्प यू, नहीं तो मदद नहीं करूंगा. इफ यू आर अनेबल टू कम इन टाइम, अगर आप टाइम पर आने में असमर्थ हैं तो यहां पर उसने कंडीशन दे दी, और कंडीशन ही इसके अंदर दी हुई है. कंडीशन ये दी हुई है कि also used to describe future, also will be used with I and V, but in conditional sentences. लेकिन सिर्फ ये कंडीशनल सेंटेंसों में I और V के साथ इस्तेमाल होगा अगर वो कंडीशनल वाक्य हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया है. I will help you if you come in time. बाकी नॉर्मल हाथ में विल सभी नाउन प्रोनाउन के साथ लगेगा, लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस है उनके अंदर विल आई और के साथ भी लगेगा. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको उदाहरण में बताया, आई विल हेल्प यू इफ यू कम इन टाइम. वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. वैसे तो ये पास्ट फॉर्म है विल की. इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट एंड फ्यूचर, और पास्ट और फ्यूचर को इस्तेमाल करने के लिए
भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने पेश है, ये वो हैव डन द वर्क, ये वो काम कर चुका होगा, ये पास्ट में है। और व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। ये भूतकाल की यादों को याद को दिलाता है। ये दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है, पास्ट फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है और पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते कि पास्ट में किए हुए कामों को याद किया जा रहा है तब। तो इट कैन बी यूज इन पास्ट एज वेल एज इन फ्यूचर, बोथ ऑफ देम। नाउ कम टू सेकंड मॉडल। अप टू नाउ आई टोल्ड यू मॉडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are only models 1 to 9, and now I would like to take second model, that is also given from serial number 1 to 4. Now come to one number or 2. Or 2 is used to perform responsibility as well as social duty. अपनी जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी निभाने के लिए और सामाजिक ड्यूटी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वी ought to serve our parents, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। वी ought to serve our teachers, हमें अपने टीचर को की सेवा करनी चाहिए। वी ought to wish our teachers, अपने टीचर्स को विश करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। और अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में भी ये आता है, वी ought to serve the poor by providing them financial aid। अगर बहुत सारे अगर कोई गरीब आदमी हम देखते हैं, उसको बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसका पैसे के जिए बिना काम नहीं चल सकता, तो उसे हमें पैसे देकर भी उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल ड्यूटी में आता है। अगर हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट इफ यू आर अनेबल देन नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ यू आर एबल टू हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग हिम फाइनेंशियल एड, इन दैट सिचुएशन वी ought to help him by providing him financial aid। तब हमें उसे फाइनेंशियल एड कुछ पैसा देकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो my dear student, it was about O2 only. Now come to second number, need. Need is meant by to use describe negatively. ये नकारात्मक सोच के लिए नकारात्मकता सिद्ध करता है। Need is used to describe negatively. नेगेटिवली describe करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Example, suppose if a teacher is teaching in the classroom and the student are also making a noise, then teacher will say to the student that टीचर स्टूडेंट से कहेगा, क्या कहेगा, वही आपके सामने पेश है, यू नीड नॉट टू मेक ए नॉइज, यू नीड नॉट टू मेक ए नॉइज, तुम्हें शोर ना करने की जरूरत है। तो यहाँ वो नकारात्मक बात कर रहा है, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए, यू नीड नॉट टू मेक ए नॉइज, ठीक है, तुम्हें जरूरत है शोर ना करने की, यानी नकारात्मक वो बात कर रहा है, उससे नकारात्मक किसी काम को ना करने के लिए टीचर स्टूडेंट को सलाह दे रहा है। और यही आता है नीड, और यही नीड की पहचान है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, डेयर टू। डेयर टू इज मेंट बाय टू हैव ए करेज। इसका मतलब है साहस रखना, जोश रखना। यू नो ऑलरेडी very well that without having any courage you cannot do any work। अगर आपके अंदर जोश नहीं है, साहस नहीं है, तो मेरा ये मानना है आप क्या हम भी कोई काम नहीं कर सकते। जोश होना और साहस होना बहुत जरूरी है। तो इज यूज इज मेड बाय टू हैव करेज। एग्जाम्पल है, जोश तो सभी रखते हैं, जोश तो लोग घूमने में भी रखते हैं, घूमने फिरने में भी रखते हैं, टहलने में भी रखते हैं, खेलने कूदने में भी रखते हैं, बात करने में भी उनका जोश है, बोलने में जोश है,
लेकिन कुछ जोश ऐसे होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, जिनके ऊपर कोई जोश होता ही नहीं है, वो बड़े भक्तिशाली होते हैं। जैसे आर्मी सोल्जर ऑलवेज गेयर्स टू फेस द एनिमी। आर्मी सोल्जर हमेशा दुश्मन का मुकाबला करने का साहस करता है। तो गेयर्स टू ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नाउ come to number 4, used to it means by to describe habitual action। ये बताता है हमें कि हमारी आदत को प्रकट करता है। आदत का मतलब एक या दो दिन कोई काम करके आदत नहीं होती, बल्कि महीनों कोई काम किया जाता है, सालों कोई काम किया जाता है। तो कोई काम लगातार उसी वक्त, हर रोज, उसी टाइम पे, उसी रूप में किया जाता है, उसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। इफ ए वर्क इज डन डेली लाइक सेम एज बिफोर एंड ऑन द सेम टाइम, दैट इज नोन एज हैबिचुअल एक्शन। जब कोई काम उसी रूप में, उसी तरह से किया जाता है, उसी टाइम पे, उसी तरह से, तो उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने पे है, आई यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर डेली व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा ही था तो मैं 5 किलोमीटर हर रोज भागा करता था। आई यूज्ड टू रन 5 किलोमीटर डेली व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा ही था तो 5 किलोमीटर में भागा करता था। 5 किलोमीटर हर रोज भागना, ये आदत को प्रकट करता है। माय डियर स्टूडेंट, I told you today modal auxiliary is also the definition of the verb that help the main verb in order to help the main verb for describing in present partial future. In order to form the sentence, it has been classified in 2 types of modal. One is modal only and number 2 semi-modal. So first I told you modal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then I told you 4 modal. These 4 modal are known as semi-modal, and beside this, whatever I have told you previously, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, these are known as modal. Total quantity of the modal and